Hello friends, I am Rakhi and welcome to yet another new topic about the organic chemistry basic principles. In this video, we'll be learning about electrophiles and nucleophiles. Fine. So basically in this video, I'll be telling you about the electrophiles. It's chapter number 12, class 11. So let's begin with the concept relating to electrophiles. Fine. So electrophiles and nucleophiles, in this video we'll be learning about electrophiles. So what are electrophiles? Electrophiles, in a simple way, I'll be saying you electron loving species. ठीक है? So electrophiles are electron loving. अब जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर these, or I can say this also represent electron. So ऐसी species will love the electrons. अब ऐसी कौन सी स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को लव करेगी? ऑब्वियसली एक ऐसी स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या वो पॉजिटिवली चार्ज होगी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिवली चार्ज. तो आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पता ही होगा. नहीं तो आप देख सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स. So they are electron loving. That means they love electrons. ठीक है, उन्हें प्यार है इलेक्ट्रॉन से. तो वो खुद क्या होंगे? वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तभी तो they love electrons. कोई चीज किसी को तभी प्यार करेगी ना, they are कहते हैं ना opposite poles like each other, ऐसे हम बोलते हैं ना. So same is the case over here. अगर मैं बोल रही हूँ electrophiles, so obviously they are the species which love electrons. तो ऑब्वियसली वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगे या they'll be having a short of electrons. मतलब वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करेंगे. कोई चीज किसी से तभी प्यार करती है when it is short of it, जब उसको किसी चीज की कमी हो. Since if I'm having in my life, अगर there is a short of love, so obviously I'll go to a place or to a person who love me. It is the same case. मुझे जहाँ प्यार मिलेगा, I'll be going there itself. Fine. So same is the case with electrophiles. अब कोई छोटा बच्चा भी अगर हम देखते हैं, then somebody loves him, loves a small kid. So obviously that kid will go to that person because he's not getting love from anywhere else. He's getting the love from that particular person. Same is the case with electrophiles. तो इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है. फाइन. सो कमिंग इट वाज द एक्सप्लेनेशन इन लेमन लैंग्वेज, बट इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज, इन साइंटिफिक लैंग्वेज, लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स. So electrophiles are electron loving chemical species. Their attraction is due to the presence of an electron deficient atom in them. ठीक है. So electrophiles are electron loving chemical species. It is clear to you. This attraction, that means their attraction, उनकी attraction क्यों है, वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ? Their attraction is due to the presence of electron deficient atom in them. electron deficient atom का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इसलिए होते हैं because they are short of electrons, they are electron deficient, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. So electrophiles may be either positively charged. electrophiles देखो positively charged तो obviously होंगे जो electrophile. अगर मैं कहूंगी कि H positive है तो obviously it is an electrophile because उसमें electrons की कमी है, तो वो electron की तरफ attract होगा, तो it is an electrophile. ठीक है. So electrophiles may be either positively charged, fine, or electrically neutral chemical species. तो electrophile दो जिन्हें हमें categorize हुए हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज. फाइन. सो वी कम टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. तो अगर आई एम टेकिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटिंग टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स देखते हैं. H पॉजिटिव सी, H पॉजिटिव मैंने यहाँ लिखा है, तो ये अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, H पॉजिटिव है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, H पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव आल्सो हैविंग, इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव और एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप. R मींस अल्काइल ग्रुप, तो अगर R पॉजिटिव आता है तो इट इज आल्सो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं: H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, R पॉजिटिव एंड certain many more other.
एक्सेट्रा लिखा है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन अ नटशेल कार्बोकैटायन कहते हैं। ये किनसे रिप्रेजेंट हुए, जो भी मैंने आपको यहाँ बताया, इन सबको मैं क्या बोलूंगी, इनको मैं बोलूंगी कार्बोकैटायन। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और से कार्बोकैटायंस, फाइन। सो दोनों को एक चीज में कह सकती हूँ, यू कैन कहीं भी कार्बोकैटायन दिखे तो यू कैन जज इट और यू कैन रिकॉग्नाइज इट, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, फाइन, यू कैन से इट। सो आते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है, इट्स इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या पढ़ते हैं, जैसे आर के ऊपर जाते हैं, आर रेडिकल, इट्स अ फ्री रेडिकल। Cr2, सी दो इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस Cr2 इट इज नोन एज कार्बन। अगर इस तरह से कोई यूनिट कहीं पे रिप्रेजेंट होती है तो उसे हम कार्बीन बोलते हैं। इस तरह से कहीं यूनिट आर रेडिकल एंड देन डॉट डॉट Cr2 इट्स कार्बीन, आर रेडिकल इज फ्री रेडिकल। आते हैं NR पे, तो इससे नाइट्रीन्स इसको बोलते हैं। BF3 इज आल्सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, AlCl3, SnCl4 etc. these all are neutral electrophiles. Fine. Now आपको पता है कि since both positively charged and neutral electrophiles are short by a pair of electrons. आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कह लो और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को कह लो, दे आर शॉर्ट बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स जो है दे आर शॉर्ट बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मार्क दिस लाइन, जो फ्री रेडिकल्स है ना, इसको पढ़ लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है, ऑब्वियसली दे आर शॉर्ट बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, दे आर शॉर्ट बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इवन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो शॉर्ट बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनमें जो मेरा फ्री रेडिकल है इट इज शॉर्ट बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट बाय वन, शॉर्ट का मतलब है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बाकी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अदर देन फ्री रेडिकल, उनमें जो कमी है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को छोड़ के बाकी जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और पॉजिटिवली चार्ज जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है जिसको मैं कार्बोकैटायन भी कहती हूँ, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो सिंस बोथ पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आर शॉर्ट बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, free radicals are however short by one electron, they have the strong tendency to attract electrons from other sources and hence behave as Lewis acid, ठीक है। अब इनमें कमी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम। अब जिसमें कमी होगी, जैसे these compounds are having electron deficient, these electron compounds are electron deficient, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, so they will attract those compounds which are full of electrons, fine. So same is the case, they have these compounds, that means positively charged electrophiles and neutral electrophiles हैं, they have strong tendency to attract electrons from other sources, इनमें बहुत ज्यादा strong tendency है कि ये other sources से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, बिकॉज इनमें कमी है, कभी ये खींचेंगे भी कि भाई अब हमें दे आर बहुत ज्यादा एम्प्टी हो चुके हैं, डेफिशिएंट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली फॉर स्टेबलाइजेशन they attract the electrons towards themselves, and उनके पास बहुत ज्यादा strong tendency है, they strongly attract the electrons from other sources, ठीक है ना। other sources कुछ भी हो सकते हैं, that means कोई और compound जिसमें इलेक्ट्रॉन full हो, they are full of electrons, fine. So these the positively charged electrophiles and neutral electrophiles they have strong tendency to attract electrons from other sources. अब कोई भी चीज मतलब अगर कोई भी स्पीशीज अट्रैक्ट करेगी या खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स किसी और अदर सोर्स से, तो वो स्पीशी कहलाएगी लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड जो कहेंगे टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस एसिड किसे तो हम जो भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, दे आर नेम्ड एज, दे आर नोन एज लुईस एसिड, ठीक है। So positively charged electrophiles, neutral electrophiles have strong tendency to attract electrons from other sources and hence they behave as Lewis acid because they are attracting the electrons from other sources. तो कोई भी species अगर attract करेगी इलेक्ट्रॉन किसी other source से, तो वो species कहलाएगी as a Lewis acid, ठीक है। आगे electrophiles always attack the substrate molecule. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये खुद डेफिशिएंट होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल को ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ई एंड देन पॉजिटिव, बिकॉज
they are deficient of electrons. तो electrophiles का short form I can represent this. So electrophiles E positive always attack the substrate molecule at the site of highest electron density. Since इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑब्वियसली ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट की ऐसी साइट पे अटैक करेंगे जहां पर इन्हें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी। जहां इन्हें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे ना, ये उसी साइट पे अटैक करेंगे रिएक्टेंट की या सबस्ट्रेट की। ठीक है, आई होप ये इलेक्ट्रोफाइल्स वाला जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बारीक से बारीक कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू दिस इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक, देन डू राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। इट्स मी राखी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय।